Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So welcome back once again, and let us continue with what I was trying to teach last time, which was the theories of management. Okay, so we have already done Mr. Henry Fayol's theory. उसके ऊपर हमने ध्यान जितना रखना था रख दिया. लास्ट टाइम हमने एक दूसरा थियरी स्टार्ट किया था, जस्ट टू रिमाइंड यू, याद दिलाने के लिए कि हम अभी तक चैप्टर 1 ही कर रहे हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अभी सीख रहे हैं. ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ चुका है. दूसरा थियरी जो हमने किया था, थियरी का मतलब है एक सोच. ओके, तो पहला सोच मिस्टर हेनरी फेयोल का था, दूसरा फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, और वेरी सिंपली पुट, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी. ओके, नाउ इट्स अ डिफरेंट थिंग. जो हमारे देसी बच्चे हैं, दैट इज़ ऑल ऑफ अस. सर, टेलर मतलब वो जहाँ पे हम कपड़े सिलाने जाते हैं? नहीं. ओके, वो एक होता है, वो एक प्रोफेशन है, वो एक स्किल है, ये एक नाम है. ओके, और इसका जो अल्फ़ाबेट्स है वो ऑब्वियसली ना, यू कैन, अ लॉट ऑफ फेमस क्रिकेटर्स इन द स्पोर्ट्स अरीना have the first name or the second name as Taylor, which is the above, Taylor. Now, last time in Taylor's scientific management theory, what did I complete? Let me very quickly go through it. The principles का मतलब क्या था? Well, there were 6 points of principles. First one being science, not rule of thumb. Harmony, not discord. Mental revolution. Cooperation, not individualism. Division of responsibility and development of the employee and employee for improved efficiency. There was a code word or a code phrase given to you, but because this theory सोच completely depends upon scientific analysis. ओके, तो साइंस में इमोशन का कोई जगह नहीं होता है. ओके, इमोशन अपनी जगह ठीक है, बट साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स. अगर कुछ होता है या कुछ होने वाला है, उसका कुछ रीज़न होना चाहिए, उसका कुछ कैलकुलेटिव रीज़न होना चाहिए. जैसे ये वर्ड है विश्वास, फेथ अपनी ओर होता है, वो हमारे धर्म में, हमारे फॉलोइंग ऑफ गॉड में काम आता है. ओके, बट यहाँ पे नहीं. सो मिस्टर टेलर completely
gave this theory based on science. Okay, now I did tell you that these were the 6 principles of scientific management and you went through it. हाँ sir, this ये सब समझ में आया, but it's a very important question is the how. आपने बोला कि हमको calculatively, okay, we have to base our decisions, our management thinking has to be on science, but the question is how do we do this? So today's lecture is based on that how. का मतलब है techniques of scientific management. Okay, कि if you intend to do if a doctor, a surgeon intends to do an operation, ये ऑपरेशन वो बोलेगा हम लोग साइंटिफिकली करेंगे. ओके, नाउ अंडरस्टूड सर, आपने बोला कि साइंस हम सोचेंगे, बट हाउ डू वी डू इट? विच टूल्स, इक्विपमेंट्स, ओके, ब्लेड्स, ओके, काटा छुरी, मतलब जो खाने में काम आता है ऑब्वियसली नहीं, बट यू यूज सर्टन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. सो कौन सा टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हमको यूज करना चाहिए? ओके, सो यहाँ पे नॉट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, बट हमको ये साइंटिफिक थिंकिंग कैसे करनी चाहिए, टेक्निक्स. ओके, सो इट इज अ क्वेश्चन विच कैन इवन हैव प्रिंसिपल्स और हैव टेक्निक्स, और इंडिविजुअली प्रिंसिपल्स अलग से पूछा जा सकता है या सेपरेटली टेक्निक्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. राइट नाउ, व्हाट इज द फर्स्ट टेक्निक? आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? समथिंग कॉल्ड एज वर्क स्टडी. नाउ हियर थिंकिंग कौन कर रहा है? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेल द एम्प्लॉइज कि ये काम आपको करना है, बट उसके पहले मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि ये काम होता कैसे है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिपीट माई सेल्फ. मैनेजमेंट विल गिव अ सर्टन टास्क, जॉब, कार्य टू द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज काम करने आ रहे हैं, उनको पगार कमाने का है, वो काम करेंगे, बट बिफोर द जॉब स्टार्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग होना चाहिए ना. सो द मैनेजमेंट शुड प्लान आउट कि द जॉब दैट इज बीइंग डन, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ओके, वो किस तरह हमको करना है, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू अराइज फ्रॉम द एम्प्लॉइज. अगर एक गैराज में काम हो रहा है एक गाड़ी पे, हाँ, एंड द ओनर में भी पहले उन्होंने बहुत गाड़ियों पे काम किया है, ही इज एन एक्सपर्ट, बट अभी वो मालिक बन गया है, तो अभी वो काम नहीं करता, अभी वो ऑर्डर करता है. समथिंग लाइक दैट मैनेजमेंट भी करते हैं, ऑर्डर करते हैं. बट जब कोई जूनियर एक्चुअली वो गाड़ी के हुड के नीचे जाएगा और वो गाड़ी को नीचे से टिक करने की कोशिश कर रहा है, वो क्वेश्चन जरूर करेगा. किसको? बॉस को, कि बॉस कौन सा पाना इस्तेमाल करूं, कौन सा स्क्रू ड्राइवर, कौन से टाइप का स्क्रू ड्राइवर, कौन से नंबर का. बॉस को पता होना चाहिए. बॉस को ये भी पता होना चाहिए, द बॉस शुड नो ये काम इस तरह होता है, ये मेथड से होता है, ये टूल्स का इस्तेमाल होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इतने टाइम में होना चाहिए. बॉस बोलेगा देखो बॉस, जब मैं एकदम एक्सपर्ट बन गया था तो ये जो पर्टिकुलर काम हमको मिला है ये गाड़ी का अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में हो जाना चाहिए. चलो आप 3 घंटे ले लो क्योंकि आप नए हो, बट इतने में तो हो जाना चाहिए. ऐसे नहीं कि पूरा दिन निकाल लो आप ये काम के साथ में. ओके, लेट मी गेट स्टार्टेड कि व्हाट स्टडी द मैनेजमेंट हैज टू ऑलरेडी डू कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर जॉब. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, A, B, C, D. फर्स्ट, टाइम स्टडी होनी चाहिए. दिस इज कंसर्निंग टू द वर्क, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब द जॉब. मेथड का स्टडी होना चाहिए, मोशन का स्टडी होना चाहिए, फैटीग का स्टडी होना चाहिए. सो बिफोर यू स्टार्ट द जॉब, द मैनेजमेंट शुड समवेयर ऑन पेपर नो ऑल ऑफ दिस. व्हाट शुड दे नो? टाइम, मेथड, मोशन एंड फैटिग पहले ही पता होना चाहिए. ओके, नाउ थोड़े डिटेल में कि ये स्टडीज होते कैसे हैं एंड किसके लिए किया
जाता है. ओके, वेरी सिंपली पुट, द वर्ड दैट सेज टाइम स्टडी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि ये काम आपको कितने टाइम में करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डू नॉट गिव टाइम टू द एम्प्लॉय तो पूरा दिन लेगा और तो भी बोलेगा कि सर काम नहीं हुआ, सर कल आके मैं बाकी का काम करूंगा. अभी वैसे करेगा तो टाइम डिले हो जाएगा. यू हैव टू गिव अ टारगेट ऑफ टाइम, इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. दैट इज वेरी सिंपल पुट, टाइम स्टडी. मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है. ओके, मेथड का मतलब होता है कि व्हाट इज द मेथड that is going to be used. Every student has a different method of learning any subject. They have a different timetable of learning, क्योंकि हर स्टूडेंट को उनका मेथड सूट होगा, दूसरों का मेथड सूट नहीं होगा. ओके, सो देयर आर सम एक्सपर्ट्स जिन्होंने बच्चों को बोला है, लेक्चर्स दिए हैं, मेथड 1 आप ट्राई कर सकते हो, मेथड 2 आप ट्राई कर सकते हो. सिमिलरली the management has to very clearly tell the employees कि बाबा कौन से methods को यूज करके ये जॉब हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे. ओके, कंटिन्यूइंग, 2 स्टडी हो गए. मोशन स्टडी मीन्स व्हाट. दिस इज अ स्टडी ऑफ मूवमेंट. ओके, बिकॉज इफ यू डोंट टेल, एग्जाम्पल, if somebody is going for a driving test, okay, so the one who is taking the test, he has to tell the one जो ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस लेने आया है, देखो आपको स्ट्रेट जाना है, फिर आपको लेफ्ट लेना है, फिर आपको यू टर्न लेना है, फिर आपको यहीं पे वापस आ जाना है. तो आई रिपीट, यू आर इंस्ट्रक्टिंग एंड गिविंग द डायरेक्शंस. तो ऑटोमेटिकली उसको भी थोड़ा कम टेंशन है, उसको पता है कि भाई मेरे को गाड़ी कितने स्पीड से लेके जाना है, टर्निंग आएगा तो मेरे को क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू टेल द एम्प्लॉइज कि आप जब काम करते हो, देयर आर सो मेनी मशीन्स. ओके, कहाँ पे काम स्टार्ट होगा, कौन से मशीन पे काम स्टार्ट होगा, फिर आप कहाँ पे जाओगे, फिर आप कहाँ पे जाओगे, फिर आप कहाँ पे जाओगे. तो वो एक प्लान होता है, एक मोशन प्लान, जस्ट लाइक अ मोशन फिल्म. ओके, एवरी पिक्चर मोशन में होता है ना, पिक्चर नहीं, वीडियो मोशन में होती है. ओके, हाँ, बट द डायरेक्टर, बिकॉज ही गिव्स द डायरेक्शन, कैमरामैन बोलेगा मैं शूट कर लूंगा साहब, बट कहाँ पे जाना है. हाँ, तो उसको एक मोशन प्लान दिया जाता है. देयर आर मेनी टाइम्स ना 10 मिनट की एक पूरी सीन, 10 मिनट की एक सीन, नॉर्मली सीन्स आर ऑफ मे बी 1 मिनट और इवन लेस देन दैट, बाद में एडिट करके उसको जोड़ा जाता है. बट समटाइम्स द सीरियल्स एंड द सीन्स इन अ मूवी, एन एक्शन सीन स्पेशली, काफ़ी लंबा रहता है. हाँ, द डायरेक्टर शुड गिव द कैमरामैन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि कौन से मोशन में हमको ये काम करना है. सिमिलरली द मैनेजमेंट हैज़ टू टेल द एम्प्लॉइज. एंड द लास्ट, फटीग स्टडी. व्हाट डू यू मीन बाय फटीग? थकना. ओके, अगर आप एम्प्लॉइज से मोर देन रिक्वायर्ड काम कराओगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे प्रोडक्शन में, तो वो थक जाएगा. मे बी वो 1-2 दिन काम करेगा, ओके, वो अपनी पूरी जान लगा देगा काम करने के लिए, बट बिकॉज वो मेंटली और फिजिकली ड्रेन आउट हो चुका है, यू नेवर नो कि वो तीसरे दिन बीमार गिर जाएगा, और बीमार भी ऐसा हो गया कि 15 दिन खटिया पकड़ लिया. फटीग स्टडी. यू आर नॉट सपोज टू गिव एडिक्वेट वर्क, डोंट गिव एक्स्ट्रा वर्क. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी कैपेबिलिटी है वर्कर्स की उतना काम दो, ज़्यादा काम मत दो कि वो फटीग, वो टायर्ड हो जाए. These studies have to be done in advance. I repeat myself, work study are of 4 types. One, time study, the another method study, motion study, and fatigue study. This is the first technique of scientific management कि study करके आप रख लीजिए. Next, standardization of tools and equipment. Well, what does you mean by, what does this point, what does Mr. Taylor mean by tools and equipment? Every job that is done in a particular company, in a manufacturing facility, in a production area will require, सब काम तो हाथों से नहीं होगा ना, tools and equipments are going to be required. Now those tools and equipments that are being given to all the employees, they obviously have to be standardized. Standardized का मतलब क्या होता है? सेम लेंथ, ब्रेथ, मोटर कैपेसिटी,
एंड ऑल द अदर फीचर्स, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. बिकॉज अगर आप अलग अलग कैपेसिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अलग अलग लोगों को दोगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन होता है उसके हेल्प से वो भी मेजरेबल नहीं होगा, वो भी अलग अलग होगा. ऑटोमेटिकली वर्कर्स कंप्लेन करेंगे, सर आपने उनको एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का टूल्स एंड इक्विपमेंट दे दिया, हमको आपने 5 साल पुराना दिया है. तो ये ऑब्वियस है कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, हमारा प्रोडक्शन स्लो रहेगा. द मैनेजमेंट हैज़ टू मेक श्योर that the tools and equipments given to all the different employees are standardized. कोई मॉडर्न है तो सबको मॉडर्न दो, पिछड़ा हुआ है तो सबको पिछड़ा वाला दो, बट इट हैज़ टू बी द सेम. यू कैन नॉट गिव सम स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, तुम 3 घंटे ले क्या आंसर लिखने के लिए, दूसरों को बोलो जो खास है कुछ ज़्यादा ही खास है 4 घंटा लो, अरे दैट इज अनजस्टिफाइड. आप किसी को 3 घंटे दे रहे हो, किसी को 4 घंटे दे रहे हो. स्टैंडर्डाइज्ड, इट हैज़ टू बी द सेम अक्रॉस ऑल द फीचर्स. नेक्स्ट, अगेन टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक because obviously it depends upon calculations and stuff. You get the word scientific everywhere. Scientific task setting, that is very very important. Again, the management is the one that frames the task. काम क्या करना है, ओके और वो साइंटिफिकली होना चाहिए. अगेन मन चाहा एट द वेरी बिगिनिंग ना, देयर वाज समथिंग साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. उसका मतलब क्या है, द मैनेजर ओके उसको फील होता है, फील होता है कि ये एम्प्लॉय ज्यादा काम कर सकता है, ये थोड़ा कम काम करेगा, मेरे को इससे फील होता है. फीलिंग से नहीं चलता है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस के ऊपर चलता है. तो मे बी आप कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस करो with the employees and you come to know कि कौन कितना capable है, and according to the capability of the employees you give them task, okay, such that each one is working to the maximum of his capability and accordingly the output from that employee also is the maximum, and then therefore the organizational employee पूरे परिवार का output automatically ज़्यादा हो जाएगा. Again, it is not based upon the manager's personal preference, personal feelings, personal choice. No, it is based upon certain scientific principles कि जिसकी जो capability है, जो manager का काम है जानना. That is the reason a management is there. They have to observe, they have to see, they have to do the necessary calculation and find out कौन से employee का क्या task handle करने का capability है. Okay, next. Again, scientific selection and training. Now, every job requires a different category of expertise. In a building, मतलब एक बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जब उसका फाउंडेशन रखा जाता है, you require different category of workers. They are good at digging. They are good with JCB machines and cranes. Okay, फाउंडेशन में वो एक्सपर्टीज रखते हैं. बट जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, RCC दैट इज दोज रीइंफोर्स्ड व्हाट यू कॉल स्टील बार्स, उसको रखा जाता है, उसको फिर एक साथ बना के एक पिलर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. फिर आगे जाके प्लम्बिंग इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब, an electrician is a specialized job, wiring is a specialized job, CCTV cable laying is a specialized job. So very important, what the management should select as per the job requirement. Obviously management काम नहीं करेगा, but काम पे किसको रखना है, किससे कौन सा काम करवाना है, वो मैनेजमेंट को सही से करना चाहिए. बिकॉज द मोमेंट दे डू द सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग करेक्टली, वेन एवर अ मूवी, सी देयर आर सो मेनी मूवीज दैट, बॉलीवुड मूवीज जो आपने देखा है, जो मैंने देखा है, एंड वी सी अ पर्टिकुलर मूवी एंड अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो साइड एक्टर रहेगा, वो हीरो रहेगा, हीरोइन रहेगा, विलेन रहेगा, मतलब वी आर लाइक ये कैरेक्टर हमारे दिमाग में छप गया है, ऐसे बढ़िया उसने एक्टिंग किया है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था. एनी अदर खान कुड नॉट हैव डन इट, जितना ये न्यूकमर ने ये एक्टिंग करके दिखाया है. आई रिपीट, देयर आर व्हेन ओके
कास्टिंग डायरेक्टर्स। कास्टिंग डायरेक्टर मतलब शूटिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, बट ये रोल में किसको कास्ट करना है, हु विल बी द वन हु सेज एंड गिव्स दीज डायलॉग्स द बेस्ट, कास्टिंग डायरेक्टर का काम। तब जाके पहले उसने सिलेक्ट किया, तब जाके ये भाई साहब को, ये आई मैडम को एक्टिंग का मौका मिला, और जाके उसने एक्टिंग एंड वो उभर के आया है स्क्रीन पर, एंड वो एक हिट कैरेक्टर एक सीरियल में या एक मूवी में बन चुका है। सिलेक्शन, कास्टिंग डायरेक्टर आके एक्टिंग नहीं करेगा, बट किसको एक्टिंग करवाना है ये रोल का, दैट बिकम्स वेरी दैट सिलेक्शन हैज टू बी वेरी गुड, एंड देन अकॉर्डिंगली जिसको सिलेक्ट किया गया है उसको, वेरी सिंपली पुट, there are so many movies which are very specialized. That movie can be related to boxing, that movie can be related to kabaddi, okay, that movie has to be related to maybe army training, okay, based on that. So the actor जिसको select किया है उसको उसका training तो देना पड़ेगा ना, वो particular dialect का, वो particular भाषे का, वो particular mannerism का, वो particular कपड़े का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हाँ, तो जिसको सिलेक्ट किया गया है उसको अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देना जरूरी है। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नाउ व्हेन किसी के घर में अगर शादी रहेगी, यू सी देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैव टू बी वरीड अबाउट, खाना, कपड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, रहना, डीजे वाला भाई साहब, केटरर एंड सो मेनी थिंग्स, ओके, डेकोरेशन, दीज ऑल डिफरेंट फंक्शंस। अगेन, अगर आप एक ही से ये काम करवाओगे या आप बोलोगे कि इसको अलग अलग लोग को काय को हमको सिलेक्ट करना है, ओके, घर में ये 2-3 लोग बैठे इनको सब काम दे दो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आप इतना ज़्यादा, इफ़ यू वांट दैट पर्टिकुलर वेडिंग टू बी अ सक्सेस, ओके, अज्यूमिंग देयर आर नो कोविड लिमिटेशंस, कि भाई हमने जितने लोग को इनवाइट करना था टाइम पे हमने उनको इनवाइट किया है, अगर वो गांव से आ रहे हैं, अगर वो नेटिव प्लेस से आ रहे हैं, अगर वो शहर के बाहर से आ रहे हैं, टाइम पे उनको मैसेज जाता है, उनको रिसीव करने के लिए कोई तो जाता है गाड़ी के अंदर, कौन सी गाड़ी जाएगी, उसका सीटिंग कैपेसिटी क्या होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शंस। When all of that is put together and taken care by different people in a movie making, जब एक पिक्चर बनती है 3 घंटे की या वेब सीरीज बनती है 1 घंटा, हाफ एन आवर, 20 minutes, there are many aspects and those aspects, अलग अलग functions are taken care by different people. Even very simple as selecting के वो कैरेक्टर कौन सा कपड़ा पहनेगा, वो कपड़ा कौन स्टिच करेगा, उसको कौन पिकअप करने जाएगा, कौन उसको लेकर आएगा, एक्टर को कौन पिकअप करने जाएगा, कहाँ पे लेकर आएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड इन अ मूवी और अ वेब सीरीज एवरी जॉब इज गिवन सेपरेटली, ताकि ईच जॉब बराबर से हो। सो व्हाट डज टेलर से, उनका ऐसा कहना है कि 2 चीजें, प्लानिंग अलग लोगों को करना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग लोगों को करना है, ओके। तो जब ये अलग लोग अलग अलग अपना काम करेंगे तो सक्सेसफुली पूरा काम हो पाएगा। आई रिपीट, ही हैज मेड अ डिस्टिंक्शन, ही हैज बीन वेरी क्लियर कि प्लानिंग जो फर्स्ट काम होता है अलग लोगों से करवाओ, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ओके, वो जो होता है, देयर आर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया comes up with many plans, okay, they come up with many rules and regulations, especially COVID के time पे, but then they cannot take care of the entire country of India. Yeah, they are the central government, but they plan, their different departments plan, वो implement किसको करना है, various states, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, केरला को, अलग अलग अपना स्टेट को, अपनी स्टेट्स में वो जो रूल्स, जो प्लान्स बनाए गए हैं, ओके, कि वैक्सीन्स किस तरह देना है, कौन से एज कैटेगरी को देना है, किस दिन पे कितना देना है, एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट, ओके। नाउ व्हाट इज टेलर्स थिंकिंग, उन्होंने एक सजेशन दिया कि बाबा देखो 8 फोरमैन हैव टू बी देयर, ताकि ये प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो सही से हो सके। 8 फोरमैन, बेसिकली ये फोरमैन इज समबडी हु हैंडल्स, एक सुपरवाइजर की तरह होता है, वो उसके नीचे लोगों को हैंडल करता है, एक टीम लीडर के जैसे होता है, उसके नीचे एक टीम होती है, ओके।
प्लानिंग के लिए कितने फोरमैन्स की जरूरत है, कितने सुपरवाइजर्स की जरूरत है, कितने क्लर्क्स की जरूरत है और वो क्या क्या काम करेंगे. इफ यू सी एट प्लानिंग लेवल, दिस इज अगेन द सेम थिंग, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सब कैटेगरी. प्लानिंग लेवल पे उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि रूट क्लर्क एक होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्लर्क एक होना चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एक होना चाहिए, डिसिप्लिन क्लर्क एक होना चाहिए. सी दीज आर लाइक मॉनिटर्स इन अ क्लास. नॉर्मली एक मॉनिटर होता है ना. ओके, सो इफ दैट वन मॉनिटर द टीचर सेज कि बाबा तुम ये पूरे क्लास के 60-70 बच्चों पे ध्यान दो, इट इज अ लॉट स्ट्रेसफुल जॉब. बोलेगा मैडम क्या क्या काम करना है, मैम व्हाट एम आई सपोज टू डू. ओके, डिसिप्लिन देखूं, कौन क्या बोलता है वो देखूं, कौन अपना होमवर्क करता है वो देखूं, किसने बराबर यूनिफॉर्म पहना है वो देखूं, कि मैम आई एम अलोन, व्हाट डू आई डू. हाँ, सो टेलर ने कहा कि काम को आप बाइफिकेट करो. रूट क्लर्क, रास्ता. ओके, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो गूगल मैप्स रास्ता दिखाता है, बट समथिंग सिमिलर टू दैट, कि भाई एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, एन एम्प्लॉय कैन गो टू दैट रूट क्लर्क एंड फाइंड आउट कि फर्स्ट पोस्ट क्या है, सेकेंड काम कहाँ पे जाना चाहिए, तीसरा कहाँ पे जाना चाहिए. उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शन क्लर्क के पास होता है. तो ही कैन गो टू द इंस्ट्रक्शन क्लर्क एंड ही कैन आस्क कैन यू गिव मी अ प्रिंट आउट, ताकि मेरे को अगेन एंड अगेन आपके पास में आने की जरूरत ना पड़े. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम वाला, ही इज अ सुपरवाइजर, ही सेइंग बराबर टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं, बराबर कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं. ऐसे नहीं कि भाई हमारा पापा का पैसा है, जितना पैसा चाहिए इन्वेस्ट करो. ही कीप्स a budget on that, he keeps a control on that. And discipline, सब लोग टाइम पे आते हैं, टाइम पे लंच के लिए जाते हैं, लंच खत्म करके टाइम पे आते हैं, बाथरूम ब्रेक उनका 2-3 घंटे का नहीं होता है. he sees that. ये प्लानिंग है. इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन काम आएगा, गैंग बॉस, उसका जैसे नाम है ना वैसे उसका काम है, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. व्हाट इज अ गैंग बॉस? वेल जस्ट लाइक यू नो, एक भाई, एरिया का भाई, उसके कमांड के ऊपर सब लोग काम करते, थोड़ा डर रहता है लोगों को उसका. तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है. ओके, थोड़ा डर रहता है, थोड़ा खौफ रहता है कि भाई ये आ जाएगा तो भाई हमको बम्बू गिरेगी, हमको काम करना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स लाइक अ गैंग बॉस. व्हाट इज अ स्पीड बॉस? के ही विल पुश, ही इज लाइक द इंजन ऑफ अ कार, ही विल कीप ऑन पुशिंग द एम्प्लॉइज कि भाई इतने धीमे मत काम करो. ओके, थोड़ा फास्ट. ओके, थोड़ा एनकरेज, हौसला अफजाई वो करेगा. रिपेयर बॉस, टू मेक श्योर कि एक स्पीड पे काम चल रहा है, द मशीन्स हैव टू बी, द इक्विपमेंट्स हैव टू बी ऑपरेटिव. बट अगर वो बंद पड़ गए तो क्या? हाँ, तो रिपेयर बॉस का काम है. दिस एम्प्लॉइज विल गो, सर मशीन ए, मशीन बी, मशीन XYZ खराब हो गया, जल्दी आके रिपेयर कर लो. लास्ट वन, इंस्पेक्टर. सब काम होने के बाद में वेदर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वेदर द जॉब दैट हैज बीइंग डन, जो काम किया गया है, जितने के लिए इतने 8 फोरमेन्स की जरूरत पड़ी, क्या वो काम अच्छे स्टैंडर्ड का, अच्छे क्वालिटी का हुआ है, वो इंस्पेक्टर देखता है. तो दैट इज द सजेशन इन व्हाट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कि प्लानिंग लेवल अलग होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन अलग होना चाहिए. एंड प्लानिंग लेवल में देयर आर डिफरेंट गाइज, डिफरेंट पीपल हु टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट functions, and similarly at a implementation level. Next and last, 6th point, differential piece rate wage plan. Very important. What do you mean by differential? Different. How do you encourage employees to put in their best efforts? Okay, कि अपनी बेस्ट मेहनत आपको करनी है, क्योंकि आप कितना भी लेक्चरबाजी कर सकते हो, मैनेजमेंट तो वही करते हैं, लेक्चरबाजी करते हैं, बट विल दैट एक्चुअली एनकरेज द एम्प्लॉइज? ओके, एम्प्लॉइज क्या करेंगे? हाँ, मैनेजर बॉस हमको लेक्चर दे रहा है, चलो बैठ के सुन लो, बाकी और क्या करना है हमको, हम लोग लेक्चर सुन के अपने काम पे लौट जाएंगे. नो, उससे वो लेक्चर टाइम पास हो जाएगा. What does differential piece rate wage plan mean? This is an incentive. Okay, it will push the workers to perform better. Example, एक काम है और वो काम के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं. हर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट बनाएगा. 8 घंटे के शिफ्ट में वो इतना बनाएगा. सो एवरीबडी, एवरी एम्प्लॉय विल बी टोल्ड, देखो अगर आप दिन में व्हाट यू कॉल 5 यूनिट बनाओ तो आपको हम आर्ली क्या 50 रुपीज देंगे. और लेट्स जस्ट से आर्ली नहीं, हर पीस पे आपने 5 बनाया,
50, 5 मिनिमम है। सब लोग 5 बनाएंगे तो सबको 50 रुपीज के हिसाब से मिलेगा। बट देन दे विल बी टोल्ड कि देखो 5 तो सब लोग बनाएंगे, बट अगर आप थोड़े स्पीड से, थोड़ी और मेहनत करके, ओके, थोड़ी और अक्ल लगाकर 7 यूनिट्स बनाओ, then we will not pay you at 50 rupees per unit, we will pay you at 55 rupees per unit, very important। तो what does the employee think? oh, अगर मैं 5 यूनिट बनाऊं तो मेरे को हर एक का 50 मिलेगा, बट अगर मैं थोड़ा और हार्डवर्क करूं, थोड़ा अपने आप को और पुश करूं, लंच का टाइम थोड़ा कम लूं, बाथरूम थोड़ा कम जाओ, जितना नेसेसरी उतना जाने का, बट टाइम पास थोड़ा कम करो, और मैं वो 5 के जगह पे 7 यूनिट्स बनाऊं, देन आई विल बी पेड 5 रुपीज मोर। हे, दैट मीन्स माई पेमेंट, माई वेज, माई पगार विल गो अप। सिमिलरली द मैनेजमेंट कैन से जो 9 यूनिट्स बनाएगी, ऑलमोस्ट डबल, देन वी विल पे देम 60-70 रुपीज। दैट इज द डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। पीस के हिसाब से पेमेंट हो रहा है। आप 1 पीस बनाओ, 2 पीस बनाओ, 3 पीस बनाओ, पीस के हिसाब से। बट अगर आप नॉर्मल से ज्यादा बनाओ तो नॉर्मल से ज्यादा भी आपका पेमेंट होगा। सो ऑटोमेटिकली इट इज एन एनकरेजमेंट। यू डोंट हैव टू टेल द एम्प्लॉइज, ओके, यू डोंट हैव टू बी बिहाइंड द एम्प्लॉइज। 24 घंटा आपको हर शिफ्ट में उनके पीछे नहीं पड़ा रहना। आपने उनको बोल दिया कि दोज हु परफॉर्म बेटर, their payment will also be at a higher level, at a different level। जो लोग नॉर्मल काम करके जाते हैं उनको नॉर्मल पगार मिल जाएगा, ओके। जो लोग कम काम करते हैं मे बी उनको थोड़ा पनिशमेंट भी रहेगा। ओके, सो देन एम्प्लॉइज विल नो, अच्छा 5 तो मिनिमम हमको बनाने का है, 4 बनाऊंगा तो मेरे को, उन लोग बोलते हैं, बॉस ने बोला है कि डिडक्ट होगा, बिकॉज वो नॉर्मल कैपेसिटी से कम है। डिफरेंशियल पीस रेट, वेज रेट प्लान। देयर वर 6 points। All of these 6 points to remember, we always come up with some sort of a phrase or a word. Today it is very much connected to this particular channel which says Steven sir teaches tutors for progress, and I genuinely want that every bit of my lecture, any particular subject, takes you in a ahead direction। ahead, 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, 5 कदम आगे। अभी ये स्टीवन सर टीचेस ट्यूटर्स फॉर प्रोग्रेस आपको कैसे काम आएगा? वेल, क्वाइट सिंपली पुट, द स्टीवन का एस, दैट इज द हाईलाइटेड वर्ड, होपफुली हेल्प्स यू रिमेंबर वर्क स्टडी। द सर का एस होपफुली हेल्प्स यू रिमेंबर स्टैंडर्डाइजेशन। द टीचर्स का टी हेल्प्स यू रिमेंबर साइंटिफिक टास्क सेटिंग। द ट्यूटर्स का टी हेल्प्स यू रिमेंबर ट्रेनिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। एफ, functional organization, and P, peace rate, differential peace rate, okay। because these phrases, these words, ये जो short forms है जो आपको काफ़ी जगह पर अलग अलग मिल जाएंगे। क्यों दिया जा रहा है? because by the time right now you may not know how many chapters do you have, you may not know how many chapters do you have to do when it comes to all of these subjects, okay। by the end of your entire academic year, load, वजन बहुत बढ़ जाएगा। and if some important questions and answers can be remembered in this particular style, then that would be थोड़ा आपका load वहाँ पे कम हो जाएगा, and that's exactly what we are trying to do here। so by this, officially a chapter number 1, principles of management, definitely comes to an end। most probably next time हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। दैट इज वेन एवर यू सी अस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आपको वो आइडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, लेट मी चेंज माई सीन एज वेल एज माई पोजिशन एंड रिमाइंड यू कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, किस बात की देरी है। एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया या आपको ये चैनल में क्या चाहिए एज फार एज योर 12th स्टैंडर्ड academics are concerned। Do message, I mean to say share with as many people as possible the news of this particular platform, so that more and more of your friends, those who are doing their 12th standard boards,
can also benefit from everything which is being explained here. I will meet you very soon with the continuation of this particular subject. Baki subjects are obviously on a continuous basis at 9 a.m. in the morning, something or the other via the Telegram channel will be notified to you. Okay, अगर Telegram channel आपने join नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए. Till the time we meet again, do take care of yourself. अपने परिवार वालों का, अपने बड़े छोटों का, सबका ख्याल रखिए. Good day to all of you. God bless.